the brief, right? So I hope all centers are connected now. Lucknow, Patna, Raipur, Jaipur. Welcome all. So today I'll start with the GMA, and then I'll be covering section of GMA plus LR, right? So a couple of weeks back, around 10 days back, I had finished math section, basic numeracy part, which will again be repeated after a week or so, or 2 weeks or so. So this portion was covered. As I discussed earlier, that out of 80 questions, generally the basic numeracy, GMA, LR portion, then second part was DMPS and interpersonal skills and communication skills, and third area is comprehension, right? Plus English, you can combine that. So if there are 3 blocks in CSAT, and year by year the weightage is like more or less same, थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, but the toughness, level of toughness is increasing. I must say that last year comprehension का जो weightage था is almost 45% था, right? Where if this is around 35% and this was the remaining, कितना है बाकी? मतलब इसको थोड़ा और कम कर दो, 40 and इसको 15% के आसपास था, ये थोड़ा 15-20 मान लेता हूँ मैं ऐसे. And this I must say चलो 40 का एवरेज ले लो तो, because एक दो चीजें कुछ क्रॉस सेक्शंस था, right? If I take this portion, basic numeracy, logical reasoning, in basic numeracy का portion last year there were only 3 questions, but if I look at 2011 there were around 9 questions, right? Which were directly connected with basic numeracy part. तो उसका weightage ऊपर नीचे होता है, but overall जो weightage है of these topics are continuously same. So आपको अगर आप 80 मार्क्स का पेपर है, 200 क्वेश्चंस हैं, 2.5 each, right? And if there is a 110 to 120 लाना है, बच्चों टफ ना होता जाएगा. 105 बोलते हैं लास्ट ईयर ये कट ऑफ है, बट आई एम सेइंग यू शुड एम एट अराउंड 120 इफ यू रियली वांट टू क्रैक दिस पेपर. एंड 120 का एम करोगे तो आपको कम से कम, अगर मान के चलो, अगर आपको ये 40 का हो रहा है 100 वेटेज के हिसाब से, तो मेक श्योर दैट यू स्कोर यहां पर एटलीस्ट 80%, राइट? बिकॉज इफ यू आर कैटिंग अराउंड say 32 questions into 2.5 कितना होता है? टाइम अप. 32 question into 2.5 marks, each question has 2.5 marks. 64 and 16 कितना होता है? हे भगवान, 32 का 2 कितना होता है? 64. 32 का हाफ कितना होता है? 16. 64 and 16 80. हाँ, तो 80 मार्क्स यहाँ होते हैं, राइट? अगर 80 मार्क्स में से अगर आप 60-70 ले आए, देन वो कॉम्प्रिहेंशन एंड जीएमए रीजनिंग, सॉरी बाकी सारे एरिया में ना, इट इज देयर आर चांसेस टू क्रैक थिंग्स, बिकॉज स्पेशली इन डीएमपीएस क्वेश्चंस देयर इज अ चांस ऑफ एम्बिग्यूटी, राइट? देयर आर क्वेश्चंस वेयर यू कैन नैरो डाउन ऑप्शंस ऑफ 1 or 2 एंड यू आर नॉट श्योर दैट वेदर टू क्रैक इट और नॉट. सो इन दैट केस थोड़ा टेंशन हो जाता है. सो मेक श्योर दैट यू हैव एनफ टाइम टू स्कोर दिस. सो गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून पटना. So if I give you a weightage, let me give you my analysis of last 2 years paper. So I had some 2 years paper and I was jotting down section wise. That section wise वो papers का analysis में, again I was trying to make a trend analysis and I found that if I look at the paper of last 2 years, तो GMA और LR के अंदर लोग वैसे हम लोग करते काफी कुछ है, but LR has a higher portion, right? Almost अगर मैं टोटल 40 क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं तो LR हैज ऑलमोस्ट लाइक 24 क्वेश्चंस. सॉरी 32 क्वेश्चंस की बात करता हूं तो 32 में से मान के चलो उसका 60% लॉपसाइड, 18 to 13 क्वेश्चंस LR से आ रहे हैं. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय LR? लॉजिकल रीजनिंग. इट हैज 3-4 एस्पेक्ट्स. वन इज एनालिटिकल रीजनिंग. आई विल बी डिस्कसिंग दैट टॉपिक वाइज जब आएगा. सेकेंड पार्ट इज डिडक्टिव रीजनिंग. थर्ड पार्ट इज क्रिटिकल रीजनिंग, right? And fourth part is वो decision making is a part of DMPS then, right? Where in GMA के अंदर बहुत सारे stuff आप लोगों ने पढ़े हैं, देखे हैं. Like if I start with today, I'll rather start with this topic: clocks, calendars, dice, cubes, and all, right? Then there are all those sitting arrangements, directions, right? Then there are puzzles. There are Venn diagram based questions. There are data sufficiency based questions. And there are lot many miscellaneous things like missing numbers and other stuffs are there,
right? Out of which, again, puzzle has a very high weightage. In the last 3, 4, I'll give you that analysis in Excel next week, and we'll give you the overall picture, a brief overview of that. And in my classes, I'll keep continuing discussing all those questions कि कौन-कौन से questions आ रहे हैं. Last year एक बड़ा unique trend था कि I'll be sharing those questions with you. There are some visual reasoning based questions आए थे, right? There are some pie charts and there are some डायरेक्शन टेस्ट का वो एक क्वेश्चन 11 में नहीं था बट 10 के अंदर था. सो आई वुड लाइक टू एक्सपोज यू फॉर दैट एज वेल, राइट, कि वो क्या क्या चीजें होता है. बट आपका जो बेसिक जीएमए एलआर सेक्शन है, मेक श्योर दैट यू आर रियली फोकसिंग ऑन सम टेक्निकल स्टफ्स. तो इन टुडे एंड टुमारो बिकॉज टाइम इज लेस, आज थोड़ा आधा घंटे का क्लास होगा यार, सॉरी फॉर दैट, राइट, बिकॉज इट गॉट एक्सीडेड द प्रीवियस क्लास. सो आई विल टेक क्लास फ्रॉम 2 to 30 टुडे, राइट. एंड आपको एक टॉपिक कराया था क्लॉक्स, उसका मैं आज रिपीटेशन कराऊंगा, उसका सारा टेक्निकल पार्ट करके वी विल practice around 10 to 15 questions today. In the coming classes, I would like to take things in the sequence where first 2 or 3, 4 classes के अंदर मैं इसको finish करूंगा GMA portion, and I'll take around 6 to 8 classes of this reasoning part, right? Where I want you to get exposed to this side on the much more proportionately in a better way rather than following those stuff. वो जो पुराना stuff है ना, वो बैंक पीओ का stuff होता है. वो लोग जो मैं देख रहा हूँ सीसेट के अंदर जो बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं मार्केट में, 90% वो जीएमए प्रैक्टिस करते रहते हैं और उसका इतना वेटेज सीसेट में लास्ट 2 years में तो नहीं आया है. सो ट्राई टू रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ टू द जीएमए सेक्शन, राइट. एलआर हैज मोर वेटेज दीज डेज, सो वी नीड टू प्रैक्टिस मोर स्टफ. सो पटना, आई कैंट सी यू यार ऑन कैमरा. लखनऊ, कानपुर, प्लीज could you please switch on your camera. So if I discuss, so let's start with clocks today. There is some assignment that I'll be sending it to you. Have you got it today? No. So वो मैंने उनको बोला था कि next class के लिए confine करेंगे. There is a section called dice and cube, right? So today एक time speed distance वाली class के अंदर we discuss some clocks वाला फंडा. So उसको मैं एक revision करूंगा and there will be around 10-15 questions on that. So is that okay with you, all of you? Right. So hi Mirat, how are you? So let us start with first topic, clocks today. So clocks has 3-4 fundas to remember, and let me see how you respond to it. If you remember, clocks has 12 areas, right? 12 equal अगर आप divide करोगे उसे, so there are 12 portions. अगर आप पूरा उसका 360 degree होता है तो each section will be of 30 degree. So one thing that you need to remember is this is 12, 6, 5, 4, 3, 2, 1, right? So this each section is of segment 30 degree. Another thing that you are supposed to know in this is that if the time is 1 o'clock at this moment, right? In the next 1 hour, what will happen? Like I repeated in the previous class, but some of the guys have joined the class today, right? Or maybe off late after the basic numeracy class. So I'm just going to repeat what I have discussed. So it's just like a fresh altogether new class, right? So let's assume that this ये red वाला जो पेन है वो आपका minute hand है और ये black pen is a hour hand. तो अभी time हुआ है 1 o'clock, right? अगले 1 घंटे में क्या होने वाला है? 1 घंटे के अंदर आवर हैंड जो आपका ये 12 है, ये 1, 2 है, आवर हैंड अभी 1 बजने के बाद अगले 1 घंटे में 2 बजे पर आ जाएगा, राइट. दैट मीन्स आवर हैंड इज गोइंग टू मूव फ्रॉम 1 to 2, वेयर इन मिनट हैंड जो आपका रेड पेन से यहां पर रिफ्लेक्ट कर रहा है, मिनट हैंड वो पूरा एक राउंड लगाएगा, राइट, और दोनों पैरेलल हो रहा होगा. तो व्हाट विल हैपन दैट आवर हैंड को 1 घंटे में सिर्फ यहां से यहां तक मूव करना है, राइट. और जनरली वैसे मूव करेगा, आप देखें जरा, मैं अपना थोड़ा एक स्मॉल डेमो करके दिखाता हूं कि पहले आवर हैंड आगे बढ़ेगा स्लोली, बट मिनट हैंड थोड़ा फास्ट जाएगा, कहीं पर वो कोइंसाइड करेंगे, कहीं पर फिर वो आके 90 डिग्री एंगल बनाएंगे, चलता रहेगा, 180 डिग्री एंगल बनाएगा, एंड लेटर ऑन टाइम विल बिकम 2 o'clock, राइट. सो अगले 1 घंटे के अंदर आवर हैंड विल मूव फ्रॉम 1 to 2. तो आवर हैंड जो है सिर्फ 30 डिग्री मूव करता है. सो इन 60 minutes आवर हैंड मूव्स 30 डिग्री, राइट. सो एवरी मिनट कितना हो जाएगा? 30 by 60 और हाफ.
तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि आर हैंड जो है एवरी मिनट हाफ डिग्री मूव करता है, राइट. सिमिलरली इफ आई लुक एट मिनट हैंड जो है 12 से पूरा 1 घंटे के अंदर फुल राउंड लेगा. तो जो मिनट हैंड है वो 60 मिनट के अंदर पूरा का पूरा कितना डिग्री मूव करेगा, 360 डिग्री मूव करेगा. सो एवरी मिनट इट विल मूव 360 बाय 60 डिग्री. इज इट ओके? सो अगर आप इस बेसिक ट्रेंड को देखें तो मिनट हैंड जो है वो 6 डिग्री मूव करता है, जबकि आर हैंड जो है हाफ डिग्री मूव करता है. ऑन दिस बेसिस द एंटायर क्लॉक इज मेड. तो उसका जो मूवमेंट का जो डायरेक्शन स्टाइल है वो सारा का सारा इस रेशियो में होता है. तो अगर जनरली आप बोले कि वो रेशियो क्या होता है, तो आर हैंड और मिनट हैंड का जो स्पीड का रेशियो होता है वो एवरी मिनट वो अगर हाफ डिग्री मूव करता है तो वो 6 डिग्री मूव करता है. और इस केस में उनका रेशियो क्या हो जाता है, 1:12. तो मिनट आर हैंड और मिनट हैंड का जो स्पीड का रेशियो होता है वो ऑलवेज 1:12 का होता है. इज इट क्लियर? मेरठ, पटना, लखनऊ, आई कैन सी यू हियर. आर यू ऑन चेस अवेलेबल राइट नाउ? और नहीं हो, कहां हो? तो आज का पहला सवाल, मैं वो बातें नहीं कर रहा हूं हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे दे विल मीट एंड ऑल, आई विल बी डिस्कसिंग इट लेटर. तो जो पहला क्वेश्चन जो काफी पर्टिनेंट है एज फार एज एग्जाम्स आर कंसर्न, पहले वो आपको एक क्वेश्चन दूंगा एंड देन आई विल डिस्कस का सोल्यूशन क्या आएगा. तो क्लॉक्स में आपको दो तरह के क्वेश्चंस आएंगे. एक तो हो सकता है कि आर हैंड और मिनट हैंड वो मिलते कब है, कि 1 से 2 के बीच में जब वो मिल रहे थे तो कब मिलते हैं, या वो 90 डिग्री एंगल कब बनाते हैं, राइट. और दूसरा है कि कोई भी आपको टाइम दे देता हूं. फॉर एग्जाम्पल इफ आई गिव यू अ टाइम ऑफ 3:48, time is 3:48. So question is, what is the angle between hour hand and minute hand? So पटना, काफी लोगों ने यहां पर लक्ष्मी वगैरह, आई होप यू आर देयर. सो द क्वेश्चन दैट आई हैव आस्क्ड इज, आप लोगों को पहले भी किया हुआ तो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं यू विल रिस्पॉन्ड फास्ट. कि टाइम है 3:48, आपको बताना है आपको ये बताना है कि इस केस पे आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच का एंगल कितना है. ओके, सो फर्स्ट रिस्पॉन्स आई हैव गॉट इन दिल्ली इज 264. लास्ट टाइम नहीं गया, शाबाश. वेट करते हैं, नॉट डिनाइंग इट. पटना, आंसर करो. कानपुर, लखनऊ, टाइम है 3:48. पटना ने कहा 264, दिल्ली ने कहा 264. ओके, आई एम नॉट डिनाइंग इट, जस्ट वेट. 48 का क्या किससे मल्टीप्लाई करते थे? नहीं, वो डिपेंड, वो इनको कुछ और दिखाया था. ओके, सृष्टि ने कहा ये क्या हो रहा है, सब भूल गए, इकोनॉमिक सर्वे में इतना डूब गए. 40 का 6 से मल्टीप्लाई या 5.5 से मल्टीप्लाई, वो दोनों एंगल से कर सकते हो, बट मैंने एक सिंपल तरीका बताया था. 48 इंटू 6 कितना होता है? 288. उसमें से 90 माइनस करो,
हाँ 264 आंसर गलत है, वो तो वैसे भी दिखा देता आपको। ये ना देखो 30 30 30 30 30 150 तो यही है। 360 में से अगर 300 हटा दोगे तो 2 से कम ही होना चाहिए। पटना 264 नहीं है यार। लखनऊ कौन कौन बैठा हुआ है यहां पर, नाम लिखो अपना। मेरठ हु ऑल आर देयर, पुट डाउन योर नेम एंड सेस। एक हफ्ते नहीं आया तो आराम से मस्ती हो गई। पटना 174। आंसर स्लो क्यों आ रहा है? मेरठ मीनाक्षी, मीनाक्षी व्हाट्स योर आंसर, व्हाट्स योर राशि? हाँ वो एक डायलॉग था मीनाक्षी मूवी में, 7 राशि वाला कुछ। एनीवेज सो जरा करे मीनाक्षी, आई नो इट्स योर सेकंड क्लास। अरे गेस्ट तो मार सकते हो ना, पेनल्टी नहीं है। हाँ 170 बोला। अरे यार यहाँ तो मतलब चलो कोई बात नहीं, डोंट वरी। मैं भी पहली बार पूछ रहा हूँ, आप जस्ट वाइल्ड गेस मारो, आपको सिखाया नहीं तो सीखोगे कैसे? अब 198 काफी लोग बोल रहे हैं अब। ओके अब थांबा, पुट डाउन योर पेन एंड लुक एट द बोर्ड। राइट, फंडा इज, जरा देखो बोर्ड पे आराम से। क्या करो, ये अज्यूम कर लो कि भैया पहले मिनट हैंड जो है 12 पे है। मिनट हैंड 12 पर है और टाइम बज रहा है अभी 3 बज रहा है। दो बहुत सारे तरीके हैं क्वेश्चन करने के, मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा, उसके बाद आपको सिर्फ 10 सेकंड लगेगा आंसर निकालने में। तो पहले लंबा नॉर्मल मेथड सीख लो, फिर शॉर्टकट सीखना। अगर यहां से मिनट हैंड 48 मिनट तक आ गया, if from here, from this place, if minute hand has moved 48 minutes. So, as you know, minute hand, every minute it moves कितना? 6 डिग्री। तो 48 मिनट्स में कितना मूव करेगा? 48 इंटू 6 डिग्री। 48 इंटू 6, पेन टच नहीं करना। 500 इंटू 6, 300 माइनस 12, 48 का मतलब 50 माइनस 2 होता है। पेन टच नहीं करना है, ठीक है? तो 300 माइनस 12, 288, 288। इज इट ओके? सो दिस इज 288। तो ये तो है भैया पूरा, यहां से लेके यहां तक। उसमें से ये 90 डिग्री तो बेकार है, तो क्या है? 30 30 30। एक सेक्शन कितने का होता है मीनाक्षी? 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री 90। और अब आपको ये वाला सेक्शन निकालना है, बीच वाला, क्योंकि आवर हैंड जो था वो 3 पे था। 48 मिनट में वो आगे चला गया। 1 मिनट में आवर हैंड कितना आगे चलता है? जल्दी बताओ। आधा डिग्री। तो 2 मिनट में 1 डिग्री, 3 मिनट में 1.5 डिग्री, तो 48 मिनट में 24 डिग्री। अगर वो आर हैंड जो है 1 मिनट में आधा डिग्री आगे होता है, तो 48 मिनट में हाफ इंटू 48, 24 डिग्री आगे हो जाएगा। तो आपको ये 24 डिग्री और आगे ऐड करना है। तो अगर आप पूरा कितना है? 288, 288। उसमें से अगर आप 90 प्लस 24, 114, ये माइनस कर दो, 114 होगा। हाँ, तो बाकी आपका आंसर आ जाएगा। जो पटना में एक आंसर आया था 174, विच वॉज करेक्ट। हाँ, सो इन दैट केस क्या क्या किया हमने, फिर से रिवीजन करा रहा हूं कि भैया पहले मिनट हैंड जो चला था, कितना चला था? 48 मिनट। उसको 6 से मल्टीप्लाई किया और आया आंसर 288। तो फंडा ये है, मिनट हैंड को ऑलवेज जितना भी टाइम दिया हो उसको 6 से मल्टीप्लाई कर डालो। उसके बाद जो आवर हैंड है उसमें कितना बचा था? 3। जो भी टाइम होता है उसको 30 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो। और साथ में जो आवर हैंड है कितना चला था? 48, उसका हाफ डिग्री से भी माइनस कर दो। माइनस होगा ना ये, क्योंकि आपको ये हटाना है पूरा पोर्शन। तो ये 90 हो गया और ये 24 हो गया, और ये पूरा था 288।
राइट। तो उसमें से ये माइनस किया कितना 24। तो अगर 104 आप 14 माइनस कर दोगे 288 में से तो कितना आएगा आंसर 174 डिग्री। पटना वो वाला दे रहे अपना नाम लिखो। आज सारे नए चेहरे दिखाई दे रहे हैं मेरे को, राइट। सब लोग पढ़ के कहते हैं जीएम में तो हो जाएगा यार, हु केयर्स। हाँ बच्चों रुको, अभी तुम अभी क्लासेस में बताता हूं तुम्हें, राइट। डोंट टेक इट लाइटली। सीसेट इतना आसान होता तो सभी क्लियर कर लेते, राइट, बट पीपल आर टेकिंग इट लाइटली एक्चुअली, सो लेट देम। रिजल्ट आएगा तो बात करेंगे। सो मेरा डिजिट क्लियर मीनाक्षी हियर इन दिल्ली, एनी डाउट? तो करना क्या है भैया, कुछ मत करो, आंख बंद करके सोच लो, मिनट हैंड को 6 से मल्टीप्लाई, राइट, आर हैंड को 30 से मल्टीप्लाई, और जो भी उसका आ रहा है इसको 6 से मल्टीप्लाई, उसको 6 से मल्टीप्लाई, इसको 30 से मल्टीप्लाई और इसका आधा माइनस करना है। ये किया और आपको सेकंड्स में आंसर आएगा। डन। पटना क्लियर है? 3-4 लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं मेरे को अभी, बाकी लोग तो आगे आगे लगता है, उनका कैमरा वगैरह स्टिल हो रहा है। हाँ पटना इज इट क्लियर? डन, गुड। सो एक और करें फास्ट। अब रेस हो रहा है, रायपुर, दिल्ली, मेरठ, लखनऊ, आपका रेस हो रहा है, कौन फास्ट जल्दी आंसर निकालेगा? योर टाइम स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन है एंगल बताओ बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड। टाइम है 236 और चलो 242 डिग्री। व्हाट इज द एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड? वन 171 डिग्री। ओके, पटना ने कहा 171, दिल्ली में भी कहा 171, दोनों ने ऑलमोस्ट एक साथ आंसर दिया। पटना में नाम बताओ यार, खू वाला सिटिंग। पटना में सेकंड रो में जो ब्लैक शर्ट है यार, आंसर बताओ। आंसर नहीं बता रहे? हाँ भाई 171, मेरठ 171, यहां भी सबका 171। तो अब तो कोई रॉकेट साइंस था नहीं। 42 में 6 का मल्टीप्लाई कितना होता है? 42 6 252 माइनस 2 इंटू 30 60, और फिर 42 का माइनस करना है हाफ 21। सो आंसर इज 171, राइट। इसके अब हो गए, मास्टरी हो गई, सबका आंसर 171 है सर। ओके पटना, गुड। चलो तो ये हो गया पहला सवाल, जहां पर आपको कोई भी एंगल निकालना हो, हाउ टू गेट इट इमीडिएटली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जरा आराम से देखना, एक क्वेश्चन कराऊंगा फिर आपको उसके फंडे सिखाऊंगा। क्वेश्चन है बिटवीन 2 and 3, बिटवीन, ये BWN जो है बिटवीन का शॉर्टकट है, तो जरा मैं कम लिखता हूं जरा। बिटवीन 1 o'clock and 2 o'clock, right? At what time minute hand and hour hand coincide? तो टाइम है 1 o'clock, अभी 1 बजा है। क्वेश्चन है इसके बाद दोनों रेस लगाएंगे, तो 1 और 2 बजे के बीच में ये दोनों कितने बज के कितने मिनट और कितने सेकंड पर मिलेंगे? एट व्हाट टाइम मिनट हैंड आवर हैंड विल कोइंसाइड? पटना, अब जो भी लोग बैठे हुए नाम लिखो यार अपना, whoever is coordinating that, इन सबके नाम चाहिए मेरे को। एंड कानपुर, वाला सिटिंग, गाजियाबाद, रायपुर, लखनऊ। लखनऊ में तो सारे लोग कहते हैं मैथ्स के बाद पढ़ना ही नहीं है जीएम में। हाँ शॉर्टकट का इंतजार।
एक ट्राई मारो फिर करते हैं। अभी मैं आपको 30-40 सेकंड दे रहा हूं। आज मेरे पास थोड़ा टाइम कम अवेलेबल है, इसलिए थोड़ा चीजें भी लिमिटेड करा रहा हूं, राइट। बट जो कराऊंगा वो आपको सॉलिड आना चाहिए। अगले 10-12 दिन तैयार रहो बच्चों। मतलब मेक श्योर ये सारा सेक्शन है, लॉजिकल रीजनिंग, जीएमए सीएमए जो भी है, ये सॉलिड तरीके से करो। एंड सीसेट की बुक में कोई एम सेक्शन है, देखा मैनुअल इतना मोटा, वो एम सेक्शन में क्या है, लॉजिकल रीजनिंग है या बेसिक न्यूमरेसी है, तो खोल के नहीं देखी होगी। वो एम सेक्शन जो है लॉजिकल रीजनिंग का है, जीएमए का है, खोल के पढ़ लो अगले 10 दिन। सीसेट ऐसे क्रैक नहीं होने वाला। मैं आप क्वेश्चन ना उठा के क्लासेस में पढ़ना, मैं उठा के क्लास में पूछूंगा इस क्वेश्चन में इस पेज नंबर का सॉल्यूशन बताओ, ठीक है। दिल्ली में एक आंसर आया 1:24 पे कोइंसाइड करेगा। भैया ध्यान रखो, ये कोइंसाइड करेगा 1:05 से 1:10 के बीच में। हाँ, 1:07 तक तो ठीक है, देखते हैं। 5 है या 7 नहीं आया, 5 नहीं, सेकंड्स में भी आफ्टर डेसिमल 2 प्लेस एक्यूरेटली। 4 नहीं है, नहीं, अच्छा 4-5 होगा। लेट्स सी। चलो भाई करें, पटना मेरठ रेडी हो, चलो लुक पुट डाउन द पेन एंड लुक एट द बोर्ड। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक आपको भूमिका बनाना चाहता हूं। भूमिका आई थिंक मेरे को हिंदी वीडियो में पढ़ाने की बात हो गई है। आई एम ट्राइंग टू क्रिएट ओके बेस राइट नाउ। वो फंडा क्या था, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि 2 फ्रेंड्स हैं, टाइम स्पीड का क्वेश्चन है, ए और बी। इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 30 किलोमीटर का, राइट। टाइम हो रहा है 1 बजा है, ये रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन होता है। इस मिस्टर ए का नाम है मिनट हैंड, मिस्टर बी का नाम है आवर हैंड। एक क्वेश्चन है जनरल मैथ्स का, जिन लोगों ने बेसिक न्यूमरेसी कर लिया उन लोगों के लिए, जिन लोगों ने पहली बारी कर रहे हैं डोंट वरी, 2 मिनट सुन लो, एक बहुत अच्छी कहानी है। अगर 2 फ्रेंड है, एक का नाम है मिस्टर मिनट हैंड, एक का नाम है मिस्टर आर हैंड, दोनों आगे जा रहे हैं, राइट। 1 बजा है तो टाइम भी सेम है। और मिस्टर मिनट हैंड है जो वो 6 मीटर प्रति सेकंड चलते हैं, और मिस्टर आर हैंड जो है आधा मीटर प्रति सेकंड चलते हैं। और आपसे ये सवाल हो कि व्हेन विल मिस्टर मिनट हैंड कैच मिस्टर आवर हैंड, मिस्टर मिनट हैंड आवर हैंड को कितनी देर में कैच कर पाएंगे। तो चलो गैप भी हम 30 मीटर का ही लग लेते हैं फिलहाल के लिए, किलोमीटर छोड़ो। तो अब क्या करते हैं, रिलेटिव स्पीड में एक क्वेश्चन होता है कि अगर चीजें साइमल्टेनियस हैं, इफ थिंग्स आर साइमल्टेनियस देन फाइंड द गैप डिवाइड बाय देयर रिलेटिव स्पीड। एक चल रहा है 6 डिग्री से, एक चल रहा है ½ डिग्री से, दोनों भी सेम डायरेक्शन में, तो डिवाइड हो जाता है 6 - ½ और इसे सॉल्व करने के बाद आता है आपका 60/11 या 5/11 सेकंड्स होगा या मिनट होगा, जो भी होगा। ये एक जनरल एक सवाल है जो सबको आता है। आई होप ये सबको आता है। अगर नहीं आता है तो इसी का जो बेसिक है, इसी का जो फंडामेंटल रूल है, वो मैं आपको क्लॉक में यूज करके इस क्वेश्चन का आंसर निकालूंगा, राइट। सो लुक एट इट। जो फंडा जो आपको बताऊंगा कि अभी दोनों के बीच में गैप कितना है, 5 मिनट या 30 डिग्री का। जब वो कोइंसाइड करेंगे तो गैप कितना हो जाएगा, 0। मतलब उसको पकड़ना है। मिनट हैंड जो है वो अभी कहां पर है, 12 पर है। वो कितने स्पीड से दौड़ता है, 6 डिग्री पर मिनट। और जो आवर हैंड है वो ½ डिग्री पर मिनट से दौड़ता है। एक चल रहा है ½ डिग्री पर मिनट से, एक चल रहा है 6 डिग्री पर मिनट से। अभी दोनों में 1 बजे का टाइम है, गैप कितना है, 30 डिग्री का। हर एक मिनट में क्या होगा, वो 6 डिग्री आगे चलेगा, वो ½ डिग्री आगे चलेगा। तो गैप कितना कम होता जाएगा, 5.5, 6 - ½ का। जैसे जैसे वो गैप 0 हो जाएगा वो दोनों मिल जाएंगे। तो करना क्या होता है, जो भी इनिशियल टाइम होता है उस टाइम पर चेक कर लो भैया उन दोनों में गैप कितना है। 1 बज रहा है तो गैप हो जाएगा 30 डिग्री का।
2 to 3 होता तो 60 डिग्री, राइट। तो इन दैट केस क्या करना है, गैप इज 30। दिव्या, आई होप इट इज क्लियर कि 1 o'clock है तो राइट नाउ गैप इज 30. Your minute hand is moving at the rate of 6 degree, whereas our hand is moving at the rate of half degree. टाइम है अभी 1 o'clock, तो 1 o'clock के बाद जितना भी टाइम लगेगा इसमें, बिकॉज यहां हर एक चीज पर मिनट हो रही है, इन एवरी मिनट आवर हैंड इज मूविंग हाफ डिग्री पर मिनट और मिनट हैंड इज मूविंग 6 डिग्री पर मिनट। तो कितना गैप है 30 डिग्री का, तो कितनी देर में कवर हो पाएगा, 30 डिवाइड बाय 6 माइनस हाफ सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिवाइड बाय 11/2 सॉल्व करोगे ऊपर लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा 60/11। 60/11 का मतलब 5/11 मिनट। अब 5/11 मिनट का मतलब 5 मिनट तो पूरे, तो ये हो गया 105। अब सेकंडों की बात है, ठीक है। तो जरा देखना पटना कि 5/11 जो है इसमें सेकंड निकालने हैं, तो ये मिनट है, 5/11 ऑफ अ मिनट, और मिनट में सेकंड में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, 60 से मल्टीप्लाई कर दो, सेकंड में आ जाएगा। ये सॉल्व करोगे तो आएगा 300/11, और 300/11 सॉल्व करना हो ना तो पेन टच नहीं करने दूंगा। क्यों, सब भूल गए हो जो पढ़ाया था। 1/11 क्या था, क्या होता था, टाइम पास होता था सर, पहली क्लास में पढ़ाया था, कभी सब टाइम पास कर रहे हो। हाँ, 1/11 होता था 9.09%, तो 300/11 होता था 27.27। सब भूल गए यार, क्या करूं तुम्हारा। हाँ, तो ये होता है भैया 27.27 सेकेंड, तो ये ऐड कर दोगे 27.27 सेकेंड, तो ये टाइम हो गया एग्जैक्टली 105:27.27। रश्मि, दिव्या, इन लखनऊ इज इट क्लियर? पटना शौक तो नहीं लगा? क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन है फिर तो, अदरवाइज मेरी इस सेशन का आज छोटा सेशन था यार, हाफ एन आवर, क्या करूं। कल से एग्जैक्ट 1 आवर लूंगा और बहुत फास्ट ट्रैक होगा सेशन, थोड़ा जैम पैक सेशन होगा, पावर पैक, राइट। सो पटना इज इट क्लियर? लखनऊ ये ठीक है, कुछ नहीं करना, जो टाइम लो, और क्योंकि आपके जीएमएलआर के क्वेश्चंस होते हैं ना, सारे के सारे क्वेश्चन बेस्ड होंगे, तो मैं क्वेश्चंस दूंगा और उसके साथ में एप्लीकेशन कराऊंगा। इट इज नॉट अ वेरी टॉपिक इंटेंसिव और कंसेप्ट इंटेंसिव फंडा। यहां पर क्वेश्चंस देखो, उसकी स्टाइलिंग देखो और टेक्निक सीखो, एंड दैट इज हाउ यू विल बी एबल टू प्रैक्टिस इट, राइट। तो चलो लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय एंड फॉर द डे। कुछ नहीं करना, गैप है इसको डिवाइड करो 6 माइनस हाफ से। प्रश्न है between 4 o'clock and 5 o'clock, at what time minute hand and hour hand coincide? 4 से 5 के बीच में मिनट हैंड और आवर हैंड कब कोइंसाइड करते हैं? मीनाक्षी जल्दी बताओ। वन 120/6 minus half after 4 o'clock. Okay. तो 120 डिवाइड बाय 6 माइनस हाफ, ये सॉल्व करोगे तो कितना होता है 240/11। 240/11 का मतलब होता है 21 9/11। हाँ, तो पहले 21 मिनट तो निकालो पूरे। तो ये क्या हुआ,
मीनाक्षी आंसर जल्दी बताओ, आंसर क्या है? समझ नहीं आया तो बोलो समझ नहीं आया, रिपीट करूंगा। पॉइंट वाला कितना आया फ्रैक्शन? 21। तो बाबा ओए होए 240 को 11 से डिवाइड करो, 2 जा 22, देसी स्टाइल में करते हैं। चलो 20 1 जा 11, 9 बचा, तो 21 तो हो गया पूरा, बाकी जो 9 है वो 11 का पार्ट है, तो ये हो गया 9/11 मिनट। 9/11 मिनट का मतलब 9/11 इंटू 60 सेकेंड्स, अगर ये फ्रैक्शन है तो हाँ, सेकेंड्स को पूरा निकालो सॉल्व करके, तो ये होता है 540/11, रफली 4 से करोगे 44 आएगा, 100 आएगा तो 9, राइट? 421.49 सेकेंड। पटना समझ आया? आज तो बहुत ही कम टाइम बचाया मेरे पास, आज थोड़ा सा एक्शन पैक टाइम था, तो आई एम सॉरी फॉर दैट टुडे फॉर द डे। कल से पृथ्वी सर को पकड़ना पड़ेगा, जल्दी ज्यादा टाइम ना ले। हाँ, सो पटना क्लियर है तो ठीक है, पता रिपीट तो नहीं करना। दिल्ली हियर, इज दैट ओके? So let me set the agenda now for the next couple of क्या अगले 10-12 सेशन, जो 7-8 सेशन जो भी लेने वाला हूं मैं, 7-8 नहीं होंगे, डिपेंड अपॉन योर रिस्पॉन्सेज। इफ योर रिस्पॉन्सेज आर फास्ट, मैं लेवल बढ़ाता जाऊंगा। इफ रिस्पॉन्सेज आर स्लो, क्लासेस बढ़ेंगी, बट आई विल टेक अ मैक्सिमम अराउंड 8 to 12 क्लासेस, राइट? ये अभी है, लेटर ऑन प्रैक्टिस सेक्शंस तो होने वाले हैं और वो काफी टफ होने वाले हैं। सो बी रेडी फॉर, आई थिंक आप लोगों की ना थोड़ा ब्रेन मालिश अच्छे से करनी पड़ेगी। आप लोगों का मतलब अभी तक मतलब सारे फंडे भूल गए, जो सारा मैथ्स कराया था कभी चला। सो वी नीड टू प्रैक्टिस दैट, या मेक श्योर दैट द टॉपिक्स तो आपको ब्रॉडली कराने वाला हूं। मेरे कुछ जो क्लासेस में मैं ब्रेक उसका जो ब्रेकअप कर रहा हूं, करीब 4 क्लासेस लूंगा आपका जीएमए का, एंड दे विल बी अराउंड 6 to 8 क्लासेस ऑफ 6 क्लासेस करीब एलआर का, राइट? और 6 to 8 हो सकता है, डिपेंड अपॉन योर रिस्पॉन्सेस। वेयर एलआर के अंदर कंसेप्ट थोड़ा कम होता है, उसकी प्रैक्टिस की स्टाइलिंग है, जो उसके वेरिएशंस बनते हैं वो थोड़े ज्यादा होते हैं। तो आई वुड लाइक टू कवर दैट पोर्शन। आई कैन गारंटी दिस थिंग, इफ यू कवर दैट सीसेट का मैनुअल का जो एम सेक्शन है, राइट, उसे प्रैक्टिस कर लो यार। मतलब जो चैप्टर कराते जाओ उसे करते रहना, ठीक है, अगले 10 दिन के अंदर। प्लस देयर विल बी लॉट मेनी एक्सरसाइज दैट आई विल बी शेयरिंग इन द क्लास, आप उन्हें कर लेना। उसके बाद और मैं जितने भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आए हैं 11 और 12 के अंदर, आई विल बी कवरिंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन हियर along with the topic, so that you have a clear idea कि बॉस ये ट्रेंड आया है, इस ट्रेंड में ये प्रैक्टिस करना है और इतना ही हमारा दायरा है, उस दायरे के बाहर नहीं जाना है कि बैंक की किताबी ले आओ रीजनिंग की, वो कोई फायदा नहीं है, कूड़ा है वो, राइट? वो सीसेट के मतलब का नहीं है। अगर इफ आई लुक एट द लास्ट 2 year ट्रेंड, राइट, तो हम लोग पढ़ते किसी डिफरेंट स्टाइलिंग में हो रहा है, पेपर का ट्रेंड कुछ और डायरेक्शन के अंदर है। अनदर थिंग व्हाट आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, बिकॉज ऑफ यू प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स, दैट बॉस बजट आपके लिए बहुत जरूरी है। ये इसलिए नहीं कि टैक्स कितना कम हो गया तो कितनी कमाई बच गई, बट इसलिए कि पेपर में ना बहुत क्वेश्चन घुमा के आते हैं। सो प्लीज इंश्योर दैट अपनी जो उसकी प्रतियां हैं बजट की, वो रखना अपने पास, उसको जरा पढ़ो पूरे पेपर को, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है उसके नोट्स बनाओ। दो आपको यहाँ पर पृथ्वी, माई सेल्फ, पांडा सर, ऑल ऑफ अस विल बी हेल्पिंग यू इन योर करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशन, इकोनॉमिक्स, लॉट मेनी मोर थिंग्स, एंड देयर विल बी लॉट मेनी मोर थिंग दैट विल हैपन नाउ। वीकली अफेयर तो है, उसके बाद जो होगा वो मार्च के बाद बहुत सारा एक्शन होगा, राइट? आपके ऊपर ही होगा वो एक्शन। तैयारी करनी है तो यू नीड टू लिटरली ग्राइंड, ना सारी जो हार्डवर्क करना है, नोट्स तैयार करने हैं, कुछ वेरियस सेशंस होने वाले हैं, बूट कैंप्स होने वाले हैं, तो उसकी हम तैयारी करेंगे, राइट? या आई विल बी डूइंग इट, राइट? सो मेक श्योर दैट यू गाइज रेडी फॉर इट, एंड प्लीज इंश्योर दैट बेसिक न्यूमरेसी रिवाइज कर लो यार, ठीक है? चलो गाइस, सी यू टुमारो।